Okay, Okay. so Rupesh, let's proceed ahead with your mock for Bhabha Atomic Research Center. So we will proceed ahead with your mock. Ruchin sir, Vikram sir, Virender Saklani sir, and me. We are the 4 mentors, and we'll proceed ahead with your mock. Can you tell me your favorite subjects? Sir, my favorite subjects are geotechnical engineering, surveying, and RCC, building material construction and practice, and concrete technology. Okay. So I think Ruchin sir, you can go ahead with your topics. Okay, Rupesh, let me ask you questions from concrete technology and BMC. Yes. Okay. So, yes, Rupesh, tell me, what do you mean by reinforcement? Reinforcement, sir, is any foreign material to enhance its tensile property like steel or any fiber material. Reinforcement कोई और मटेरियल नहीं हो सकता है? ये हो सकता है सर. Okay. Other than steel, कौन सा मटेरियल we can use? Sir, many fibrous material we are using, sir. या सिलिकॉन ग्लास टाइप का भी कुछ आ रहा है सर आजकल. या Okay. अच्छा, tell me, what do you mean by mean compressive strength? Sir, mean compressive strength obtained when we plot our cube test result on a normal distribution curve. Then in the middle peak value we got Fm. Middle में क्यों आता है? Sir, because sir maximum number of samples try to stick that area. और FCK क्या है? Sir, FCK it is sir minimum value of our result below which 5% of the cube test result are expected to fall. Okay. अच्छा, क्या रिलेशन है FM और FCK में? Sir, FM equal to FCK plus 1.65 into standard deviation. Okay. अच्छा, 1.65 लेने के पीछे क्या रीजन है? Sir, 1.65 it is the sir deviation from the mean in which normal distribution we cover the area of 90%. 90%. Exactly, yes sir, exactly 1.645 आता है. ये प्लस माइनस करके इतना में 90% एरिया हमारे पास आ जाता है. ओके. अच्छा, चलिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ. मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ अ स्ट्रक्चर? Sir, if we are designing for 95%, so it implies that 5% is the failure of our structure. The chances of failure. 5% फेलियर है. ओके. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? Characteristic load है sir, it is a design load for which we are planning, and 5% is the only probability that it can exceed that value of load in their serviceable life period. ओके. सो आपने 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकाला है? इसमें तो मटेरियल भी फेल हो सकता है, लोड भी फेल हो सकता है. 5% कैसा है आप पे? या तो आपने सिर्फ लोड को ही कंसीडर किया है, या फिर आपने सिर्फ मटेरियल को ही कंसीडर किया है? सर, हमने पार्शियली लेके चला सर. लोड को 5% हाई के लिए रखा है कि 5% ऊपर जा सकता है, एंड मटेरियल को 5% मिनिमम क्राइटेरिया दिया है कि इससे नीचे रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए. तो पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर हम दोनों साइड से लगा रहे हैं. ओके. अच्छा, मुझे ये बताएं कि LSM का मतलब क्या है? ओके सर, LSM लिमिट स्टेट मेथड है सर. इसमें हम इंजीनियरिंग मटेरियल को मैक्सिमम स्ट्रेंथ लाइक अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक कंसीडर करके चलते हैं. अच्छा, व्हाट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स? Limit state of collapse, sir, it is that condition in which a structure is impending to failure.
state of serviceability? Limited state of serviceability, sir, is not collapsed, but it is not serviceable. Like we have some permanent undesirable deformation in our structure, or like some unacceptable crack width, like more than 0.2 mm, 0.3 mm, which is not designed for that. So we can say it is not serviceable. Okay. मुझे assumptions बताएं. LSM में बीम को जब डिजाइन करते हैं तो हम कौन कौन से assumptions लेते हैं? Sir, its main assumption is like before and after bending, the section will be plane. And second, sir, our section will be like homogeneous and behave like elastic material. Homogeneous concrete तो homogeneous नहीं होता है? नहीं, concrete तो homogeneous नहीं होता. Homogeneous और elastic ऐसा assumption लेते हैं क्या? मैं श्योर नहीं हूँ सर इस चीज के लिए. अच्छा, मुझे और बताएं, और कौन से assumptions आपको याद आ रहे हैं? दूसरा सर, radius of curvature is much more than our deflection or any value. ओके, इसका मतलब क्या है? Like sir, we can consider or we can make analysis like it's a plane. तो वो तो आपने पहले ही बोल दिया है फर्स्ट assumption में कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग मींस प्लेन आफ्टर बेंडिंग. जब वो प्लेन ही रह रहा है तो रेडियस वाला बात तो आया ही नहीं. Or we can say its radius may be considered constant. हाँ, रेडियस कांस्टेंट है. ओके, ठीक है. इसके अलावा इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ. ओके. अच्छा, मुझे एक्सियल लिमिट का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव करके बताएं. एक्सियल लिमिट सुना है आपने? यस सर. क्या होता है एक्सियल लिमिट? एक्सियल लिमिट होता है सर 1100 बाय 700 प्लस 0.87 FY बाय ES, आई थिंक ये होता है. होता क्या है एक्सियल लिमिट का मतलब क्या है? ओके, एक्सियल लिमिट सर, इट इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सर फॉर बैलेंस सेक्शन, आई थिंक. फॉर बैलेंस सेक्शन, ओके. अच्छा, एलएसएम में जब भी हमें बीम को डिजाइन करना होता है तो उसको किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बैलेंस्ड के, अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड, लिमिटिंग, कैसे डिजाइन करते हैं? सर अंडर रीइंफोर्स्ड डिजाइन करते हैं सर. क्यों? Sir, because over-reinforced will give a brittle failure and we will not have time to escape. ओके. अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेस सुना है आपने? Yes, sir. क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेस? Sir, bond stress, sir, it is the stress to transfer between sir steel and concrete. बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट. अच्छा, और क्या एक्सप्रेशन होता है बॉन्ड स्ट्रेस का? सर टाउ BD से इसे डिनोट करते हैं सर. टाउ BD इक्वल टू 5 सिग्मा S बाय 4. नहीं, ये तो LD का हो गया सर, मैं LD का बोल रहा था. बॉन्ड स्ट्रेस का बताएं. बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला बॉन्ड स्ट्रेस फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं आ रहा. ओके, चलो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज इक्वल टू V अपॉन समेशन O GD. सुना होगा ऐसा? shear force अपॉन समेशन O इंटू J इंटू D. O G into D. ओके, याद आया ऐसा कुछ shear force के? नहीं आ रहा? नहीं सर, शायद मैंने कोई दूसरा सबक याद किया होगा. अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ सर ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट हमारा स्टील कैन बी यूज्ड फॉर इट्स डिजाइन वैल्यू, और ये कंक्रीट से स्लिप ना कर जाए, इसलिए हम LD लेके चलते हैं.
अच्छा, क्या एक्सप्रेशन होता है डेवलपमेंट लेंथ का? LD इक्वल टू सर पाई इंटू 6/4 इंटू टाउ BD। ये टाउ बीडी कौन सा वाला है? परमिसिबल है या फिर जो आप कैलकुलेट करोगे वो वाला है? टाउ BD सर बॉन्ड स्ट्रेस है सर, परमिसिबल नहीं है सर। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट है, ठीक है? सीमेंट को स्टोर करने के क्या क्या रूल्स हैं? किसी साइट पर जब सीमेंट को स्टोर कराना होता है तो उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं? सर रूल के अंदर ये होता है, सबसे पहले टाइम चेक रखते हैं कि 3 मंथ से ज्यादा स्टोर्ड हमारे स्टोर में ना रह जाए। एंड सेकंड थिंग सर, जो भी हमारा मैशनरी वॉल या स्टोरेज वॉल है उससे हम 0.8 मीटर दूर रखते हैं। इट शुड नॉट बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ आवर वॉल, so it should be away from any dampness. And different stacking, we maintain a gap of 0.8 meter also. ओके। अच्छा, टेल मी, And a dry wall like water be also above from the natural ground level. ओके। अच्छा, मुझे बताओ, व्हाट आर द फील्ड टेस्ट्स ऑफ सीमेंट? So field test of cement, and when we take a pinch of cement and rub between finger, it should feel smooth. And the second test is sir, when we take a handful of cement and throw in a bucket of water, in a few moments it should be sink. And Okay. third is sir, when we insert our hand in the bag of cement, then it should feel cool, not warm. ऐसा क्यों? कूल क्यों फील होना चाहिए? Sir, because when we feel warm like that, it means it is now in contact of moisture and some hydration process is started. ओके, तो रिएक्ट करना शुरू कर चुका है। Yes sir, so it is not good Okay. for our. अच्छा, टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट? Sir, quick setting cement sir, it's just like sir, early has not any real action to gain strength, but in a rapid hardening cement, our purpose is sir to gain more strength in early weeks. So we increase our dicalcium silicate. Okay. Sorry, we increase our tricalcium silicate and we try to gain more early strength in first week. ओके, सो मुझे एग्जांपल्स बताएं कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट कहाँ पे यूज करते हैं? Sir, rapid hardening cement sir, where we will try to use the structure very soon, like rigid pavement or any highway repair work. ओके, और क्विक सेटिंग? क्विक सेटिंग सीमेंट सर मुझे याद नहीं आ रहा सर, एक्चुअली कहीं कोई वेल वगैरह में शायद यूज कर सकते हैं, वेल रिपेयर टाइप में। ओके। अच्छा, मुझे ब्रिक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट बताओगे? ब्रिक्स के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? सर मेनली देयर आर 3 constituents in the brick, like silica, alumina and lime. 3 ही होते हैं क्या? नहीं सब आयरन का भी होता है इसमें। और भी होते हैं? एल्कली क्या करता है ब्रिक के अंदर? एल्कली सुना है आपने? Yes sir, alkali is also constituent, but its function I am not able to recall sir. अच्छा, लाइम क्या करता है? Lime sir helps in the burning of brick. It Burning of brick. reduces a little bit burning temperature of brick. अच्छा, आपने स्टील का मैन्युफैक्चर देखा है? स्टील का मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखा।
स्लैग समझते हो आप? स्लैग क्या होता है? Yes, sir. Slag like the wastage of some steel manufacturing plant, sir. ओके। अच्छा, ये तो पता होगा कि स्टील का जो प्रोसेस है बनाने का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस सर दो तरीके से इसको बनाते हैं, हॉट रोल्ड एंड कोल्ड रोल्ड। हम्म। Yes, sir. ओके। अच्छा, मुझे बताओ टिम्बर के यूजेस क्या क्या हैं? अच्छा, टिम्बर के यूजेस सर वी कैन यूज इन लाइक कलवर्ट में यूज कर सकते हैं सर, एंड होम फर्नीचर डोर विंडो में यूज कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सीजनिंग ऑफ टिम्बर? Seasoning of timber, sir, it is the method, sir, by which we are trying to reduce its moisture content. क्यों मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं? Sir, because its life will increase, the timber will be more durable. Otherwise, it will be liable to more fungi attack. Or it can go for warping, bending. If its moisture is more, then it can go for warping and bending after using in the structure. अच्छा, ओके ओके रुपेश, इट्स फाइन। ओके, विक्रम सर। Okay. Thank you, Rujin sir. Yes, Rupesh. Sir. So, are you comfortable with foundation part? Yes, sir. Okay. So first of all, define what is foundation. A foundation is a substructure of any building through which we try to transfer the load of superstructure to ground or soil strata. Okay. And any idea type of foundation? As a type of foundation can be categorized like shallow foundation and deep foundation. Okay. And how we can know the foundation is shallow or deep? Sir, generally when depth of foundation is not exceeding to its width of foundation, then we tell as like shallow. And if its depth is increasing to its width, then we tell. Okay. Who's Terzaghi? Terzaghi is a scientist or engineer whose contribution in soil exploration and different theories is remarkable. Okay. So if we talk about the foundation, whether it is shallow or deep, as per the Scampton, any idea? As per Scampton, deep and shallow, sir, I am not able to recall. Okay, fine. Can you tell me or give me name of shallow foundations? Okay. Like, sir, flat foundation, isolated, and strip, strap, mat, rough foundation, all are shallow. Okay. When you go with this trapezoidal footing shape? Trapezoidal footing shape, sir, the plan when load is not equal on both footing. When load is more or less, then we accordingly we reduce the size and we plan for trapezoidal. Okay. So Rupesh, which foundation you prefer generally? Shallow foundation or deep? Sir, obviously when our strata is good, then we'll go for shallow foundation because it will be economical and fast construction. Okay. So going to design the foundation, so at what level that we have to place, so kind of the for satisfactory performance of foundation, then a foundation must have to satisfy the some following criteria or conditions. So any idea the conditions? Sir, first and foremost condition, sir, our soil should have good bearing strength. So our foundation should not settle or seasier failure. So for that we have settlement limit. For clay there is 60 mm and for sand it is 40 mm.
for Okay, fine. isolated footing. So what is the meaning of this bearing capacity of soil? Sir, bearing capacity of the soil is the maximum load which it can resist before failure, like settlement or shear. Like settlement or Shear failure. shear failure. Okay, if you have to define the soil strength on the behalf of shear failure only, then what thing you will use? Kind of the bearing capacity or allowable bearing pressure? What do you think? Sorry, the name of bearing capacity, I think net set bearing capacity. Okay, fine. Is there any impact on location and depth of foundation, where we are going to put the foundation, at what level we are going to place the foundation, and where is the location where we are casting the foundation? It is on the sloped like ground or anything else adjacent to the another footing. So what do you think? Are they impacting the foundation design or they are independent? What do you think? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाता कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। रुपेश, हमें फाउंडेशन को जब डिजाइन करना है, जी सर। क्या ये पैरामीटर भी हमारे फाउंडेशन डिजाइन को अफेक्ट करेंगे कि फाउंडेशन को कितने डेप्थ पे रखना है, और जो फाउंडेशन रखी जा रही है उसकी लोकेशन क्या है? दैट इज वहां पे कोई हमारा स्लोपिंग ग्राउंड है, वहां पे फाउंडेशन कास्ट करना है, या जिस लेवल पे फाउंडेशन रखना है उसके नियर बाय में कोई एडजेसेंट ऑलरेडी फाउंडेशन है, उस लेवल से ऊपर भी उसके, उस लेवल से नीचे भी उसके? व्हाट डू यू थिंक? Okay, sir. First, the level of startup will definitely impact for this, because strength of soil vary as per the startup vary. As we goes down, generally our bearing capacity increases. So size of foundation will vary. Okay, what is the minimum depth of footing? Minimum depth of footing, sir, 500 mm. Okay. Which one code is saying this 500 mm depth should be there? IS 456. Okay. What is the code of the bearing capacity of the soil? Code of bearing capacity of soil, sir, I'm not able to recall. 3312 करके, sir. I think मुझे याद नहीं आ रहा. What is the code for the design of shallow foundation? Design of shallow foundation code. Why IS code is saying you have to place the foundation at 0.5 meter below the ground surface? Why? Why not on the ground surface? Okay. Sir, sir, I'm not able to record, but I can try, sir. Okay. My last question to you. Yes. Foundation for the structure in river or near to the coastal area. So what do you think? The depth of foundation in that case, how can you define? That should be the depth of foundation. कितना लेवल पे तुम फुटिंग को रख सकते हो या फाउंडेशन रख सकते हो, कैसे डिसाइड करोगे? Sir, for that we will first find the scoring depth of river or sea. कि अप टू इतना डेप्थ तक तो स्कोरिंग है, उसके नीचे हम उसका सॉकेट लेंथ या ग्रिप लेंथ उसके नीचे उतना हम उसको दे देते हैं, सो दैट our foundation will be safe. Can you write the formula for calculation of scoring depth? Sir, for calculation of scoring depth, sir, 1.3 Q square by F raised to 1/3. 1.3 Q square by F Cecil factor whole raised to 1/3. What is Q? Q, sir, intensity of load. Intensity of load. Discharge. नहीं sir, discharge of the river. What is the unit of discharge? Meter cube per second, sir. Okay. ओपन चैनल में आपको डिस्चार्ज की मेजरमेंट करनी है, कैसे करोगे? ओपन चैनल में डिस्चार्ज की मेजरमेंट, सर we have some hydraulic structure like V notch और रेक्टेंगुलर नोच, वियर बैराज वगैरह ये सब बनाते हैं सर, उससे हम उसका डी डिस्चार्ज पता कर सकते हैं. भाखड़ा डैम सुने हो? यस सर. तो उसमें कौन सा स्पिलवे सेक्शन है?
सर मुझे भाखड़ा डैम का याद नहीं आ रहा था, बट जनरली वी प्रोवाइड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। यस सर। वियर और बैराज में क्या अंतर होता है रुपेश? सर वियर में सर आवर कंक्रीट स्ट्रक्चर इज मोर एंड सम मैकेनिकल और डोर मेटालिक डोर स्ट्रक्चर इज लेस। वाटर स्टोरेज जो करते हैं सर कंक्रीट से ज्यादा करते हैं, एंड बैराज में हमारा कंक्रीट फाउंडेशन कम होता है और बड़े बड़े लार्ज डायमेंशन में मेटालिक डोर या मेटालिक शटर प्रोवाइड करते हैं वाटर स्टॉपेज के लिए। ठीक है, किसी एक बैराज का नाम बताओ इंडिया के अंदर। सॉरी सर, नॉट एबल टू। फरक्का बैराज सुने हो नाम? यस सर, फरक्का बैराज। चेक करना इसकी लेंथ कितनी है, यू विल गेट द आइडिया। ओके ठीक है, ओके। यस सकलानी सर, ओवर टू यू। Okay, thank you, sir. So, okay, so what is your name? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. रुपेश कुमार। Rupesh. Rupesh, you are preparing for BAC, right? And you're from civil engineering background. So, tell me which subjects you told us as your favorite subjects? सर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग इंजीनियरिंग मटेरियल and construction practice. Okay, so I hope we have not asked any question from SOM, right? Yes sir. Okay, so let me just ask a few questions from strength of material. Okay, so Rupesh, what do you understand by strength? Sir, what do you understand by strength? Strength. The strength is it is the maximum load or force a body can resist before failure. Maximum load it can carry before failure. That's what you are saying, right? Yes sir. And now you have these two terms. One is maximum load, other one is a failure. Yes sir. So what is the maximum load and what is the failure? That you have to tell me. Sir, maximum load like any load which can be applied to the structure in their whole serviceable life. Okay. And failure is like sir any intended services for which the structure is designed and it's now failing to fulfill that intention, sir. So let's say if I say that this is a bar that I'm having, let's say this is a TMT bar, right? Yes sir. So I'm saying that its strength is 10 kilonewton. Okay sir. Will I be correct? Strength 10 kilonewton नहीं सर, ये लोड हो सकता है सर। तो आपने ये तो बोला कि मैक्सिमम लोड, स्ट्रेंथ मैक्सिमम लोड ही है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इसका स्ट्रेंथ जो 10 किलो न्यूटन है। आप कैसे बताना चाहोगे फिर? अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो कि इसकी स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन है तो कैसे बताओगे फिर आप? एज पर यू हाउ शुड यू लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वी कैन से सर, या अप्लाइड एरिया पे कितना लोड वो रेसिस्ट कर पा रहा है। तो क्या फर्क हुआ इसमें? सर इससे उसका स्ट्रेंथ हम पता कर पाएंगे, लाइक टेंसाइल, यील्ड और बेंडिंग किस किस मैंने बोला 10 किलो न्यूटन इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, तो गलत हूं मैं? देन सर इट इज एक्सेप्टेबल सर, जिसका यील्ड स्ट्रेंथ अगर है तो इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ ऐसा पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड होगा। ओनली लोड इज नॉट, बिकॉज सर सेक्शन इज नॉट डिफाइंड विदाउट देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जब तक डायमेंशन नहीं पता है ये
कितना लोड ले सकता है, वी कांट से लाइक दैट कि इतना लोड। क्या बोलूं तो कैसे बोलोगे आप? मतलब आप जो आप बोल रहे हो कि 10 किलोमीटर जो आप बोल रहे हो वो भी ठीक नहीं है, तो क्या ठीक है ये बता दो ना, क्या बोलूं मैं? लोड टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम स्पेसिफिक डायमेंशन, कि किस सर एक तो उसका एक्सिस भी बताना होगा, किस एक्सिस पे लगा रहे हैं, एंड देन देयर अप्लाइड एरिया। मैंने बोला जी ये खींचा, मैंने इसको बता दिया, मैंने आपको मैंने खींचा, और जिस लोड के ऊपर ये यील्ड किया वो भी मैंने बता दिया 10 किलोमीटर है। लोड बाय देयर एरिया, जो पेन का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? शुरू में डिफाइन किया आपने, बोला जी मैक्सिमम लोड, अब आप उसको जो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो कि नहीं आप बोल रहे हो, जब मैंने बोल दिया कि जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने बोल दिया कि 10 किलोमीटर पे यील्ड करेगा ये टेंसाइल, अब आप बोलो नहीं सर जो आप बोल रहे हो वो गलत है, पर मैंने जो डेफिनेशन दी वो ठीक है। Sir, that time I was telling like the whole structure, like yes, इस structure पे इतना लोड आ सकता है। Now we are talking like a member. तो मेंबर भी पार्ट है ना स्ट्रक्चर का। अगर आप कोई कॉलम लेते हो, बीम लेते हो, उसके ऊपर डालोगे तो आप सरिया ही। Yes sir. Sir, in that condition we should know about that dimension also. Then we can specify their strength. माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ पता है आपको? यील्ड स्ट्रेंथ? Yes sir, 250 kilonewton, 250 Newton per meter sir. 250 मेगापास्कल। Yes sir. तो वो स्ट्रेस में बोल रहे हो आप, वो भी लोड में नहीं बता रहे अब? Yes sir, स्ट्रेस नहीं है। क्यों? ओके ठीक है, तो लेट्स से आपने ब्रिज तो देखा होगा कोई, हैव यू सीन एवर ब्रिज, एनी ब्रिज एनीवेयर? यस सर। कहाँ देखा सर? कहीं भी सर, रोड में हर जगह ब्रिज रोड पे देखा, नदी के ऊपर देखा कहीं, या उसके ऊपर देखा कहीं? नदी के ऊपर भी देखा है। चलो ठीक है, अगर आपने उसको डिजाइन करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट लोड्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर? सर first of all their structure itself, dead load will be there. And second sir, vehicle load, मतलब live load plus impact load. इम्पैक्ट किस चीज? अच्छा ठीक है, इम्पैक्ट किस चीज का? व्हीकल का। व्हीकल का इम्पैक्ट कहां से आएगा? व्हीकल से इम्पैक्ट लोड क्यों आएगा? सर व्हीकल का सर उतना, लेकिन इम्पैक्ट लोड कंसिडरेबल नहीं होगा सर, तो फिर व्हीकल लोड ओनली सर, लाइव लोड ओनली लेंगे सर। अच्छा, आपने एक तो डेड वेट कंसीडर किया और इसका लाइव वेट कंसीडर किया, दैट्स ऑल? यस सर, इफ इट इज एन earthquake zone like 3 and 4, then we'll have to go for earthquake safety also sir. अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। चलो वो आपने, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए क्या करोगे आप ऐसा? Sir, all joints and their ductility will be considered for as per IS 13920 कि वो डक्टाइल वे में बिहेव करे, एंड सेकेंडली उसका जॉइंट कहीं से फेल नहीं हो जाए, इसके लिए हम एक दूसरे के साथ जॉइंट। बताओगे आप क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है? अगर मान लिया स्ट्रक्चर में वो क्या प्रॉपर्टी देख रहे हो आप जो कि इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड इट्स फेलियर इन केस द अर्थक्वेक स्ट्राइक्स? क्या प्रॉपर्टी आपके उस स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जो ब्रिज की बात कर रहे हैं, जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके? क्या ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इट्स जॉइंट शुड बी pinned, like it should be avoided for any rigid joint so that earthquake impact। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या लगाओगे उसमें, मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जो स्ट्रक्चर को फुलफिल करनी पड़ेगी, या ऐसा क्या मतलब अर्थक्वेक आने पे ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो उसको अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाए? वो सर it should be have like in a ductile manner, or transferring of load from one member to other member should be in well। इसका मतलब है कि अगर मैंने
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना है तो फिर बेटर है कि मतलब डक्टाइल मटेरियल यूज करें हम, ये बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। तो कंक्रीट क्यों यूज कर रहे हो? कुछ और देख लो, फिर स्टील का स्ट्रक्चर बना देते हैं हम पूरा। सर कंक्रीट वी यूज ओनली फॉर रिजिड pavement like for just vehicle जाने के लिए, बाकी remaining load sir we are transferring to maximum steel only। तो ऐसा क्या है जो आप नॉर्मली जो स्टील यूज करोगे, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उसमें जो कि वो अर्थक्वेक का कैरी कर पाएगी? स्टील सर एक डक्टाइल है और इम्पैक्ट लोड भी अच्छा ले पाता है सर, सडन जर्क भी अच्छा रेसिस्ट कर सकता है। सो वी कैन से स्टील इज इसके अलावा कोई और तो नहीं लोड कंसीडर करना हमने इसमें सर? दैट्स ऑल। यस। ओके, आपने इलेक्ट्रिक पोल देख, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक पोल, जो हाईवे के ऊपर आपके जो मास्ट होते हैं, हेड मास्ट बोलते हैं हम उसको। हेड मास्ट मतलब जो पाइप लगी होती है और जिसके ऊपर आपने लाइट जो है हैंग की होती है। यस सर। अगर जो हेड मास्ट है उसको मैंने डिजाइन करना है तो कौन सी स्ट्रेसेस के लिए डिजाइन करूं मैं? हेड मास्ट को डिजाइन करना है सर एज इट्स हाइट इज मच एंड मोर, so it should be stable in all direction like bending and torsional लोड के लिए ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा सर। कौन कौन से? बेंडिंग एंड टॉर्शनल स्ट्रेस के लिए। टॉर्शनल कहां से आएगी? सर if wind load is acting sir then light can try to rotate in vertical axis। और बेंडिंग कहां से आया? As sir its height is more sir it may try to buckle from the middle proportion, so due to wind load it may go for bending also। Okay। ओके, सो आपने स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा है? यस सर। क्या होती है स्ट्रेन एनर्जी? सर स्ट्रेन एनर्जी सर मैक्सिमम सर it is the energy stored in a material as it try to deform, then it's called strain energy। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक फॉर्म में सर। मतलब इलास्टिक मतलब इसका मतलब प्लास्टिक रीजन में एनर्जी स्टोर नहीं होगी? सर एनर्जी स्टोर होगी बट वी कांट टेक इट बैक। तो कहाँ गई वो एनर्जी? स्टोर तो हुई पर अवेलेबल नहीं है, गई कहाँ फिर? सर इट्स वेंट इन देयर सर परमानेंट डिफॉर्मेशन, so its particle rearranged and the energy lost for that। Okay, Rupesh, so I think I will give you the feedback because I have to leave, so other mentors will follow one by one and will take your interview also further। so see देखो आपको थोड़ा ना जो सोच रहे हो वो बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर नहीं दे रहे हो आप। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ उसकी एक्सप्रेशन में ना। बहुत आप उसको ऐसा लग रहा है बोल तो रहे हो, सोच भी रहे हो, बट आधा अधूरा सा छोड़ रहे हो। जैसे मैक्सिमम लोड से बात चली, सी जब मेरा जो स्ट्रक्चर हो कंपोनेंट है उसका डायमेंशन जब पता है ना, अल्टीमेटली बात तो मैंने लोड के टर्म में ही करनी है। अल्टीमेटली भाई कितनी स्ट्रेंथ है, आप बोलोगे इतना न्यूटन है या किलो न्यूटन है। जब किसी चीज को डिजाइन कर दोगे चाहे स्ट्रक्चर उस केस में बात करोगे, बट स्टार्ट कहां से करोगे? बिकॉज मटेरियल यूज कर रहा हूं तो मैं मटेरियल के लिए बेटर है कि मैं क्या करूं, वो स्ट्रेस के टर्म में डिफाइन करूं, क्योंकि उस मटेरियल के लिए प्रॉपर्टी हो जाती है वो। जैसे आपने बोला जी 250 मेगापास्कल, अब ये माइल्ड स्टील का इस साइज का है या बड़े साइज का है, छोटे साइज का है, कुछ और साइज है, करते रहो फिर बाद में
पर उस मटेरियल के लिए तो फिक्स हो गया ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका कि मैं उसको जो किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस के टर्म में डिफाइन कर देता हूं तो वो मटेरियल प्रॉपर्टी हो जाती है। एप्लीकेशन के हिसाब से मैं जो है उसको कन्वर्ट करता रहूं जहां यूज करना है मैंने। ब्रिज का मैंने कहा था आपको, एक जगह आपने जो सोच लिया दूसरी जगह नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल जो हेडमास के केस में आपने वो जो लोड कंसीडर कर लिया पर ब्रिज के केस में नहीं किया। हेडमास के केस में ब्रिज में भी बेंडिंग एंड विंड लोड तो आपने इग्नोर ही कर दिया। बहुत सिग्निफिकेंट लोड होगा, मान लिया तूफान चला, आपने कंसीडर नहीं किया तो वो गया ब्रिज आपका, ठीक है ना। जो लोड आपने कंसीडर किया दैट इज ओके। और जो मैं बोला देखो, जो अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है, वेव्स की फॉर्म में है। चलती है ना, एसपी वेव्स अलग अलग उसकी चलती हैं। तो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको जो है एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो टर्म आप बहुत क्लियरली ला नहीं रहे थे, बोल तो रहे थे बिट्स एंड पीसेस में बोल रहे थे, यहाँ वहां फेंक रहे थे, बट बोलो ना यार टफनेस बोल सकते हो, ब्रेकेज से अवॉइड करना है तो आप बोलोगे टफनेस इज द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। टफनेस इज रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो स्टील का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, स्टील स्ट्रक्चर में जो है सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है वो आपका टफनेस सफिशिएंट है। अब अर्थक्वेक आएगा अगर मान लिया वो ब्रिज है, जो मान लिया जो आपने रोड वहां पर लगाया बिछाया उसका कंक्रीट का, वो तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, क्रैक तो उसमें पड़ ही जाएंगे, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, उसमें तो आप स्टील बाहर नहीं डाल सकते, ठीक है। पर हाँ जो स्ट्रक्चर घर है उसमें डेफिनेटली वो आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, डक्टिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी उससे और टफनेस है, बाकी उसके अलावा और भी चीजें जो आप देखते हो उससे अवॉइड करने के लिए। बट एक बेसिक हम बात करें तो विंड वाला ये वाला जो है ठीक था हेडमास का। बेंडिंग लोड विंड के कारण भी हो सकता है, उसको नीचे करे ऊपर करे वो भी बेंडिंग लोड क्रिएट कर सकता है, उसमें टॉर्शनल लोड करेगा, वेट हार्डली दैट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। तो मेरी तरफ से तो ये है कि आप थोड़ा सा ना जैसे सोच रहे हो आप, पर उसको क्या कर रहे हो लाके ऐसे मतलब कंप्लीट फीलिंग नहीं दे रहे हो, कंप्लीट फीलिंग तक लेके जाओ उसको। बोलना है मतलब कॉन्फिडेंटली बोलना है कि ये है, ऐसे नहीं आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ सो मेरी तरफ से इतना ही, बाकी रेस्ट मेंटर्स आई थिंक लेट मी चेक डॉक्टर Virender is over there. Okay. Yeah. Okay, Rupesh, can you hear me? Yes, sir. Okay, so you studied fluid mechanics, Rupesh? Yes, sir. You know something about fluid mechanics? Yes, sir. Okay, how do you calculate the stresses in the fluid? Sir, we calculate the stresses in the fluid in terms of strain of fluid. Tau is directly proportional to shear strain and tau is equal to mu dV by ddy. The dynamic coefficient के साथ कैलकुलेट। सॉलिड्स में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं और फ्लूइड में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं लिक्विड में, क्या डिफरेंस होता है इनमें? सर सॉलिड में जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है सर वो लोड से जनरेट कर सकते हैं, कभी पॉइंट लोड हम दे देंगे तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, बट इन कंडीशन ऑफ फ्लूइड वी हैव यूनिफॉर्म प्रेशर, so with a point load or in sudden two contact we can't get stress in the fluid. आपने एक टर्म सुना है प्रेशर? Yes, sir. Have you heard about pressure? Yes, sir. How does pressure impact the liquids and solids? क्या इम्पैक्ट होता है प्रेशर का? Sir, in terms of the liquid, pressure generally tries to increase or decrease its whole volume. Increase or decrease the volume? Yes. किस चीज का? Volume. Complete fluid volume का। जो भी अगर मैं आपको एक फ्लूइड दे दूं, लिक्विड दे दूं, हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी पढ़ा है, तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा डेप्थ में। yes. तो क्या इससे लिक्विड का डेंसिटी चेंज होगा? नो सर। और सॉलिड का? यस सर, इट कैन बी। सॉलिड का डेंसिटी चेंज होगा लेकिन लिक्विड का नहीं होगा, ऐसा क्यों? नहीं सर, बिकॉज लिक्विड इज सर कंसिडर्ड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल मटेरियल,
while solid can be somehow compressed, or that internal void can be compressed or restructured. ऐसा कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट है जो कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है? bulk modulus. तो आप what you are saying is कि bulk modulus of liquid is more than bulk modulus of solid. Is that what you're saying? Yes, sir. And let me give you some values. Bulk modulus of water is 2 gigapascal, whereas bulk modulus of steel material is 150 megapascal. That is the value. Bulk modulus of steel is 150 megapascal, whereas bulk modulus of water is 150 gigapascal, and of water is 2 gigapascal. That means steel has more bulk modulus than water. अभी जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाता जाऊंगा, सी की डेप्थ में जाता जाऊंगा, वैसे से प्रेशर बढ़ता जाएगा, और वो प्रेशर जो है वो अगर हम बल्क मॉडुलस देखें, कैन यू राइट द बल्क मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी चेंज? Bulk modulus in terms of density change. Yeah. Sir, we can say like change in stress by change in volumetric strain, and volumetric strain can be expressed in like area into density. नहीं, आप बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिख के दिखा सकते हैं मेरे को? स्ट्रेस बाय पॉजिटिव है या नेगेटिव लिखा है आपने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर इट विल बी नेगेटिव सर. अब एक काम कीजिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखिए. मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सर. दोनों तरफ लॉग लीजिए. यस सर. और डिफरेंशिएट कीजिए. वन बाई एम इक्वल टू रो को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं डेंसिटी को, तो रो बाई वी हो जाएगा. नहीं, मास चेंज कांस्टेंट होता है. ये देखिए थोड़ा सा. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. जी सर. अभी क्या कर दिया मैंने? डिफरेंशिएशन किया. डीएम ओवर एम इज इक्वल टू डी रो बाई रो प्लस डीवी बाई वी. अभी चेंज इन मास इज 0. यस सर. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो था, नेगेटिव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू डेंसिटी स्ट्रेन. तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो अब इस फॉर्म में आ जाएगा. एक्सेस प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी चेंज पर यूनिट ओरिजिनल डेंसिटी. ओके सर. अंडरस्टूड दिस? यस सर. अब यहां से आई कैन कैलकुलेट डेंसिटी चेंज. डी रो बाई रो इज इक्वल टू dp by k. dp is change in pressure. And what is change in pressure? That is rho g dz over k. Yes sir. जी सर. अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट द चेंज इन डेंसिटी विद डेप्थ. यस सर.
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लिक्विड डेप्थ में हम जाएंगे डेंसिटी चेंज होती जाएगी। Got it, Rupesh? Yes, sir. Getting some idea? Yes, sir. Can we say कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो लिक्विड का डेंसिटी चेंज हो जाता है? Yes, sir. बोल सकते हैं। ओके अच्छा, आपने बर्नौली क्वेश्चन किया होगा? यस सर। मेरे को assumption बता सकते हैं बर्नौली क्वेश्चन में क्या है? सर assumption like sir flow is continuous, flow is inviscous, incompressible, irrotational। हमें सेम स्ट्रीमलाइन पे इक्वेशन लिखना है। यस सर। दैट इज आल्सो assumption? नो सर, सेम स्ट्रीमलाइन के लिए फॉलो करना है। यस सर। आपने पोटेंशियल लाइन और स्ट्रीमलाइन के बारे में सुन रखा है? पोटेंशियल एंड स्ट्रीमलाइन, यस सर। कोई एग्जांपल दे सकते हैं पोटेंशियल लाइंस के? पोटेंशियल लाइंस का कोई एग्जांपल? पोटेंशियल लाइन सर, पोटेंशियल लाइन जनरली वी कैन हीट डिफरेंसेस और टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन टू विल कॉज द फ्लो ऑफ हीट। और कोई तो रीजन होता है जिससे फ्लूइड फ्लो होता है, कोई कारण होता है तभी फ्लूइड फ्लो करता है। दैट्स रीजन इज पोटेंशियल फंक्शन। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है पोटेंशियल फंक्शन? प्रेशर को बोल सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन? यस सर, बोल सकते हैं सर। प्रेशर के डिफरेंस से फ्लूइड फ्लो होता है। यस सर। एयर फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस के चलते। यस सर। राइट? यस सर। अच्छा, आपने वॉश बेसिन देखा है घर में? यस सर। उसमें पोटेंशियल लाइन क्या होगी? ग्रेविटी सर। तो लिक्विड हमेशा हाई पोटेंशियल लाइन से लो पोटेंशियल लाइन की तरफ जाएगा। यस सर। तो वॉश बेसिन में कहां से कहां लिक्विड फ्लो करता है? वॉश बेसिन से सर डाउन साइड की तरफ जाएगा सर। हाई पोटेंशियल लाइन से लो पोटेंशियल लाइन की तरफ जाएगा। यस सर। तो पोटेंशियल लाइन क्या हुई इसमें? सर्कुलर होगी, रेडियल होगी, कैसी शेप की होगी? सर सर्कुलर होगी सर। आपने पंप यूज किया है? आपने पंप के बारे में पढ़ा है? हाइड्रोलिक पंप जो होते हैं इरिगेशन में यूज होते हैं। यस सर। उसमें नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में सुना है आपने? नहीं सर, सक्शन हेड के बारे में मैंने स्टडी नहीं किया। अच्छा, आपने कैविटेशन के बारे में सुना है? यस सर। क्या होता है कैविटेशन? Cavitation, sir, when liquid passes through like a venturi type structure, then at the minimum section, its velocity got maximum. So in that condition, its pressure head reduces significantly. And when pressure drops, then liquid started boiling and make small drops. And then liquid passes some length in enlarging section, then again liquid pressure increases and these bubbles try to burst, and ये सर burst करके फिर उसको पाइप को डिटोरिएट करते हैं सर। ये ओनली लिक्विड के केस में बनता है या गैसेस के केस में भी होती है कैविटेशन? सर गैस के केस में भी जनरेट हो सकता है सर, प्रेशर डिफरेंस अगर वहां भी ज्यादा आ रहा है तो। लेकिन गैसेस के केस में बबल्स कैसे बनेंगे? बिकॉज सर देयर विल बी डेंसिटी डिफरेंस, सो इट कैन क्रिएट वैक्यूम लाइक। Okay, so let me give you, Rupesh, the feedback of my part, what I asked.
देखो, जो BARC में है ना, वो आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको डेरिवेशन करना है, डिराइव करना है। जैसे मैंने आपसे बल्क मॉडल्स का क्वेश्चन पूछा, बल्क मॉडल का फॉर्मूला वो आपसे लिखवाएगा, फिर आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है dV/V, उसको तुम्हें डेंसिटी स्ट्रेन में कन्वर्ट करने को बोलेगा। फिर उसमें बल्क मॉडल्स अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, किसी भी चीज का मैंने बोल दिया बल्क मॉडल्स कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो वो डेंसिटी चेंज को निकालने के लिए बोलेगा कि चेंज इन डेंसिटी निकालो, किस तरीके से डेंसिटी का वेरिएशन होता है वो निकालने के लिए बोलेगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है तो डेंसिटी चेंज होता जाता है, वो निकालने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप पर्टिकुलर डेप्थ पे डेंसिटी निकालोगे, किस तरीके से आएगी। सिमिलरली वो कुछ ऐसी चीजें पूछेगा जो अजम्पशंस हैं या जो सिग्निफिकेंस है कि बर्नौली इक्वेशन में अजम्पशंस क्या हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसी चीजें आपको करने के लिए बोलेगा। तो स्लोली आपको वो सब चीजें बेसिकली इवॉल्व करने के लिए बोलेगा, ड्राइव करने के लिए बोलेगा। सर माय फ्लूइड पार्ट इज नॉट गुड, बट आपका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था तो काफी हेल्प हुआ है। आप फ्लूइड को लेकिन कर लेना, क्योंकि वो BARC में क्या करते हैं कि जो आप फेवरेट सब्जेक्ट बताओगे ना उनको, उनमें से कुछ भी वो कुछ और सब्जेक्ट से पूछ लेता है आपसे। तो वो ऐसा नहीं कि जो आप फेवरेट सब्जेक्ट बताओगे क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, तो वो आपसे क्वेश्चन जनरली किसी भी टॉपिक्स में से पूछ लेता है। तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ये है कि आपको गो थ्रू करना है। वो देख लो, मैराथन फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉन्ग का मैराथन देख लो, उससे काम हो जाएगा आपका, राइट। वो तैयारी कर लो। ओवर टू यू देन रुचिन सर। ओके रुपेश, ऑलराइट, यस रुपेश, यार देखो, सबसे पहले तो आप आपके सब्जेक्ट नोट कर लो। आपका इंटरव्यू कब है? 15 को सर। 15th को है ना? 15th है, अभी टाइम है आपके पास में, ठीक। अब क्या करो, सब्जेक्ट लिखो, सोम, RCC, स्ट्रक्चर, देन यू हैव FM, सॉइल, एनवायरमेंट, हाईवे, ठीक है। आपके जो 5 फेवरेट होने चाहिए ना, वो इनमें से होने चाहिए, ठीक है। इन 7 आप बोलोगे कि BMC आपका फेवरेट है, आपसे सवाल ही नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ही नहीं होंगे, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, कोई भी तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे, they will skip. But sir, actually I am showing work experience for 5 years. It doesn't matter. मार्क में मैटर नहीं करता। मार्क में आपका टेक्निकल स्किल वो देखेंगे, टेक्निकल स्किल इन द सेंस आपका अप्रोच क्या है क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। वो आपसे लॉजिक जानना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, दैट्स गुड, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कितने भी एक्सपीरियंस के, इट डजंट मैटर। आपके पास में 7 से 8 सब्जेक्ट है, आप चाहो तो वाटर रिसोर्सेज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 8 सब्जेक्ट में से आपके 5 होने चाहिए। आपने एक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बोला ना, सो RCC एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आर वन एंड द सेम थिंग, वो उनको एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपने 5 सब्जेक्ट जो बताया ना, उसमें से एक आपने बोला कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एक BMC, ये दोनों तो वैसे भी आउट हो गए, ठीक है। तो आपको इनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद में मैंने आपसे RCC से जो क्वेश्चन पूछे ना, यार मैं सब में मतलब आपके आंसर्स, मुझे आपसे थोड़ा और इन डेप्थ पूछना था, बट आप करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो हम इन डेप्थ नहीं जा पा रहे थे। बाकी कि एवरेज है आपका परफॉर्मेंस, मोर और लेस इट इज एवरेज। थोड़ा सा ऐसा है कि अजम्पशंस वगैरह याद कर लो, जैसा सर बोले थे ना अभी कि वो आपसे डिराइव कराएंगे, ठीक है। मैंने डिराइव कराने की कोशिश करी कि आप एक्सियल लिमिट का एक्सप्रेशन डिराइव करके बताएं, ठीक है, बट वो आप बोले कि आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था। नहीं सर, एक्सियल लिमिट का डेरिवेशन सर वी कैन गो फॉर स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, स्ट्रेन सिमिलर ट्रायंगल वी कैन गो 0.035। मैंने आपसे वही पूछा था ना, डिराइव करके बताएं मुझे, तो आप उस टाइम पे बोले थे कि आपको याद नहीं आ रहा है। ओके मैं सर वो ALD के लिए बोला था सर, मतलब टाउ BD के लिए मुझे याद नहीं आ पाया था। टाउ BD का तो मैंने आपसे सीधा एक्सप्रेशन नहीं पूछा था, आपने AXU का फार्मूला पूछ दिया, उसके बाद डायरेक्ट आपने पहले बोला कि करो डिराइव, मैं जैसे ही बोलने वाला था आपने बोला AXU का फार्मूला क्या होगा, तो मैंने 1100/700 कोई बात नहीं, वो आपको बोर्ड पर भेजेंगे, वो आपको बोर्ड पर भेजते हैं, आपको बोलते हैं कि आप इनके असम्पशंस लिखें, असम्पशंस लिखो, और फिर उसके बाद में आपसे बोलते हैं कि यार इसको डिराइव करके बताओ। और फिर ऐसा भी होता है कि मान लो कि उन्होंने ऐसा बोला कि यार ये असम्पशन हटा दो,
ठीक है, सेकंड वाला assumption हटाओ, अब डिराइव करके बताओ अब क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एवरेज परफॉर्मेंस है, इट्स नॉट वेरी बैड, इट्स नॉट वेरी गुड, बीच का परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो मोर और लेस इट इज ओके। थोड़ी थोड़ी तैयारी और करो। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होने चाहिए ना 5, वो इनमें से कोशिश करो कि इनमें से निकले। बिकॉज देखो, बोलने के लिए आप सर्वे बोल दोगे, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। अल्टीमेटली आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन और कम हो जाएंगे। दिस इज व्हाट विल हैपन। तो आपको 5 सब्जेक्ट रखने हैं इसी में से। ठीक है, ओके रुपेश, यस। सो थैंक यू रुपेश एंड सर। Okay. Yes, Ruchin sir. Are we done, sir? I've done. I've given my feedback, sir. Okay. Okay, रुपेश, वर्कआउट करो जिनमें फीडबैक दिया है आपको मेंटर्स हैं, जस्ट वर्क ऑन दैट, राइट? Yes. Okay, thank you. Thank you.